Good evening, everyone. I hope I am audible to the last chair. Is it audible? Okay. So I'll give you ample time to ask me question. First, I'll give a little brief. I'm Charu, rank 7. आवाज clear नहीं है? Now? Last? Okay, cool. Very good. Thank you. So, I'm Charu, rank 76, this year Civil Services examination. I have done Bachelor's in Management Studies from Delhi University, and I gave my first attempt in 2016, and thankfully I was selected in Railway Protection Force Service. Then I was selected in Indian Audit and Account Services, as has been already said, rank 276, and this year 76. Earlier, this was the first time I had given with political science as my optional. Earlier, I had written with geography. One of the major reason was, I think every subject, if you enjoy reading that subject, if you like that subject, if you have understanding of that subject, every subject is equally good. I wanted to change because I felt there was an exhaustion in reading that subject again and again. I had been reading that subject 4 साल से I had been reading that subject continuously. So मुझे थोड़ा सा change चाहिए था. I wanted a little change. And I started कि research a little कि क्या किसमें मेरा थोड़ा interest होगा. And luckily political science का it was easily available, notes easily available है, test series है. So I thought to try it, to take it up. कि risk तो रहती है because this was my 5th attempt. So इतने last attempts में changing the optional. But I wanted that change. In between, I took a break also because I didn't want to write also. I wanted to take a break. एग्जॉशन हो जाती है इतने साल से कंटिन्यूसली पढ़ के यू गेट दैट मेंटल फिटीग ऑल्सो एंड इन दैट सेंस आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक अ ब्रेक टू टेक अ स्टेप बैक see if you're going in the right direction, if you're comfortable with it or not, if you are मतलब आपको अपना एम ही चेंज करना है या नहीं. So take a break, that is one suggestion. Take a break, take rest also in between. Or मतलब it's not a bad thing. Ultimately you want to give your best attempt in the exam. It doesn't matter इस साल नहीं चलो अगले साल. If age is not a factor तो कोई बात नहीं. But take in between, take small breaks also, introspect, reflect also. और उसके बेसिस में सो पॉलिटिकल साइंस फॉर मी इट वाज कम्प्लीटली न्यू सब्जेक्ट. मैंने ऑनलाइन ज्वाइन करा हुआ था. ऑनलाइन आई एम पोस्टेड करेंटली इन देहरादून. सो दिल्ली से आई वाज अवे. तो ऑनलाइन मैंने टैबलेट कोर्स ज्वाइन करा हुआ था और उसी के बेसिस पे मैंने नोट्स बनाए थे. फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, क्रैश कोर्स ज्वाइन करा था. वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट आई लाइक्ड वाज कि मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो गए थे. ज्योग्राफी की मैंने कोई क्लासेस नहीं ली थी, उसमें मुझे लग रहा था, अभी भी लगता है कि मेरे कॉन्सेप्ट्स थोड़े वीक हैं. पॉलिटिकल साइंस की बात करोगे तो मैं बहुत अच्छे से अभी भी मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाती हूँ, समझ पाती हूँ. तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मेन थिंग्स बिकॉज at the exam time when you are reading so much, if you are not clear with subjects you will forget. अगर आप रट्टे से I think rote learning से काफ़ी बार जो हम याद करते हैं, जो मैं ज्योग्राफी में मिस्टेक कर रही थी, then you forget, भूल जाते हैं. But if you are very clear तो आप आंखें बंद करके भी आपको मतलब आ ही जाएगा. तो आप यू विल नो. मेन हो सकता है फैक्ट्स याद नहीं रहे बट आई थिंक द मेन क्रक्स ऑफ दैट आंसर वो आ जाता है. देन यू कैन बी, आपको कॉन्सेप्ट याद है, देन यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स. मेन उसके क्रक्स आप अपने वर्ड्स में समझा सकते हैं. एंड दैट आई थिंक दैट सिंप्लिसिटी tells the person who will be checking your answer sheet कि that person knows the subject well. So that is one suggestion if you think is appropriate, you want to take it as that कि clarity जो भी आप अभी पढ़ रहे हैं, if you're putting in time, your resources, then you should take the maximum benefit.
understand. I'm sure you can ask as many doubts from ma'am again, but understand the things. Because आप अभी पढ़ रहे हैं, ये सोच के पढ़िए कि वो आपको बाद में भी याद रहना चाहिए. So अगर वो चीज़ याद रह जाती है तो वो हमेशा बहुत रेयर होगा कि आप उसको भूलेंगे फिर, और उसको रिवाइज करते रहिएगा तो वो इट गेट्स इनग्रेन्ड इन योर सेल्फ. बल्कि मैं तो पॉलिटिकल साइंस के कई बार कॉन्सेप्ट्स कहीं और भी बोल रही होती हूँ. वी हैड एन एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन, मैं तो उसमें भी यूज़ कर रही थी बिकॉज आई रिमेंबर दोज थिंग्स वेरी वेल. एक फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन में मुझे बोलना था, and I was using the quotes, concepts from there in that competition also. So I think that is what studies is, that it becomes a part of you. And even I think in essay also, essay में भी I was using that. तो जैसे example था, जैसे पहले I wrote the essay on the first topic, the journey of self-discovery has been technologically outsourced. So I started with this story of Socrates कि जब उसने that he was in the constant search of knowledge, constant search of truth. So I started with that as think कि he was कि वो सेल्फ डिस्कवरी वाला ही होता. ही वॉज कॉन्स्टेंटली इंट्रोस्पेक्टिंग, लोगों से पूछ रहा था. बट नाउ वी हैव लॉस्ट दैट इन प्रोसेस. अब हम टेक्नोलॉजी पे, फ़ोन पे, हमने वो आउटसोर्स कर दिया है. वी आर सो मच फोकस्ड ऑन दैट थिंग्स, हमने अपने आप से क्वेश्चंस पूछना बंद कर दिए हैं. जैसे इसमें मार्क्स का वो कॉन्सेप्ट था, आई एम नॉट श्योर इफ़ यू हैव गॉन थ्रू दैट. अभी एलिनेशन का कॉन्सेप्ट है, दैट इज ऑल्सो स्पीक्स अबाउट दैट थिंग कि प्रोसेस इतना कैपिटलिज्म वाला, वो इतना प्रोसेस हमने बाहर दे दिया है कि a human being is being alienated from himself or herself, and that is मैं उसको थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रही थी उससे, एंड दैट इज़ वॉट आई यूज्ड इन माई एसे ऑल्सो. एंड दैट इज़ अ थिंग, वो एथिक्स में भी यूज़ कर सकते हो आप, ऐसे में भी. एंड दैट शोज हाउ आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एंड आई वॉज एबल टू यूज देम, अप्लाई दोज थिंग्स wherever I got the opportunity to. And I think that would also set my answers apart from others. अब जैसे ऐसे का अगर मैं geography optional से दे रही होती, I wouldn't have been started this as an introduction because I had learned this and I was able to take this. मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आया था पढ़ने में. आई यूज्ड टू टेक इट एज अ स्टोरी एंड आई एक्चुअली रिलेट टू दोज कॉन्सेप्ट्स. मुझे ये आसपास होते हुए दिख रहा था कि कंज्यूमरिज्म बढ़ रही है, तो आई वॉज एक्चुअली थिंकिंग कि हाँ, दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड मी. सो दैट इज़ व्हाई आई एंजॉय रीडिंग सो मच. और आई थिंक इवन इन IR ऑल्सो इट इन्हांस्ड माई नॉलेज अ लॉट. जो भी अभी हम जो पढ़ रहे होते हैं, इट कम्स आउट कि जैसे न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होते हैं, इट कम्स आउट कि बहुत हम ऊपर से पढ़ रहे होते हैं, बट व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग बिहाइंड इज मच मोर इन डेप्थ. कि हमने यूक्रेन का वॉर का पढ़ लिया, बट व्हाट इज actually happening, it's मतलब politics is much more deeper, the causes behind this is much more deeper, and if you actually start taking interest उसमें, देन उसमें बहुत मज़ा आता है पढ़ने में. यू एक्चुअली एंजॉय रीडिंग अ लॉट कि हाँ, अच्छा तो इस वजह से ये चीज़ हो रही है, दिस इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ सम कॉज. So I think that is one thing, you enjoy reading and enjoy the process of learning these things, these theories, and to an extent that will, I hope that gets reflected in your answers also. I think that is one thing I think I won't want to impart because I was preparing between my prelims and mains. तो बस वही टाइम था जिसमें मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा था, और नहीं पढ़ा था मैंने पॉलिटिकल साइंस. पहले के मैंने नोट्स बना रखे थे, बट मेरी रिवीजन उस पर यही हो रही थी, और जैसे जैसे टेस्ट आ रहे थे उससे पहले मैं दे रही थी. और बाकी टू इम्प्रूव माई आंसर्स देवर टॉपर्स टेस्ट कॉपीज ऑल्सो. सो आई वॉज सीइंग, जैसे सत्यम गांधी सर का था, आई सॉ हिज कॉपीज एंड हिज आंसर्स वर एक्सेलेंट. सो आई सॉ कि वो कैसे लिख रहे हैं, देन आई ट्राई टू एमुलेट दैट ऑल्सो. तो वो था, बट आई थिंक द रूट कॉज ऑफ इट वॉज, मुझे आई रियली लाइक्ड व्हाट आई वॉज स्टडिंग. और एंड आई थिंक फॉर
for improving your answer writing, you can always refer to what other people are writing, how are they adding value to their answers. But I think the ultimate point is that clarity. उसके बाद you can have that value addition वाला thing, जैसे हम जब मैम से question पूछते हैं हमेशा कि researchers के नाम, books के नाम. Of course it helps. It shows that you are well versed with the subject. You are writing as an authority because you are able to quote some other subjects. But that you should know कि सिर्फ रटने से और लिखने से फायदा नहीं होगा. That should add value. कि आप उसको refer कर रहे हैं, it should show that you know very well that this person has also written and you are able to relate that question to that person's theories. In that sense, you should read. But सिर्फ रटने से and not able to understand the topic, then सिर्फ quoting it won't help. सामने वाले को बस दिखना चाहिए कि आपको अच्छे से आंसर आता है. You have that clarity, and especially in optional, I think having that clarity is very important. एक तो बिकॉज आपको याद ज़्यादा देर तक रहेगा और वो सिंप्लिसिटी क्लैरिटी आपके आंसर में दिखेंगी. उसके बाद विद टाइम आई थिंक यू विल बी एबल टू ऐड. जैसे जैसे आप पढ़ोगे आप खुद ही उसमें ऐड करते रहोगे, और वो रिसर्चर्स स्कॉलर्स के नाम, थ्योरिस्ट के नाम, बुक्स के नाम, एंड दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर आंसर्स. नाउ विद दिस आई थिंक यू कैन आस्क एनी डाउट. जस्ट माइक दे दो उनको. Excuse me, ma'am. Hello. इधर माइक लेके आओ because others won't be able to. Ma'am, being from a non-pol science background, I'm sorry. Mic Here. है आपके. Okay. Okay. Yeah. how do you dealt with the philosophers and the other things in it, ma'am? So it's I don't think it's that मतलब या अगर आप पढ़ना चाहोगे तो it's very easy to understand. I myself am in the non-humanities background. So how to deal with the philosophers and their ideas? What Why are you seeing it as something philosophers and idea? It's मतलब ऐसा तो नहीं है कुछ. अब टेक्निकल तो इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा, बल्कि it's ma'am, just a theory. coming from Someone is geography, talking starting about. a fresh coming from geography to pol science. What was the fresh starts or steps you took for it, ma'am? मैंने तो आई जैसे जैसे नोट्स में था, आई टुक इट एज अ स्टोरी कि मैं पढ़ रही हूँ एंड दे आर गिविंग थ्योरीज ऑफ व्हाट इज हैपनिंग. ट्रुथ पे वो स्टोरी दे रहे हैं, आसपास से रिलेट करके दे रहे हैं. थोड़ा फिलोसॉफिकल बेंट है. इट्स अबाउट इंट्रोस्पेक्शन. व्हाट इज ट्रुथ, व्हाट इज सेल्फ नॉलेज, एंड आई डोंट थिंक कि इफ यू वांट टू रिलेट इट टू इट ना, आई थिंक यू कैन रिलेट टू इट. उसको रटने से अगर आप देखोगे फिलोसोफर याद करना है, आइडिया याद करना है, तो मुश्किल लगेगा. बट मुझे तो लग रहा था कि दिस इज समथिंग I can identify with it. I want to think about it also. I used to think about it also. So मैंने उसको कभी रटने के उससे नहीं देखा कि मैं उसको रट के जाऊंगी और मुझे वैसे लिखना है. एग्ज़ाम के वक्त पे भी मैं सिर्फ जो मुझे याद रहता था मेन उससे, जैसे फेमिनिज्म पे टॉपिक आया था एक. मुझे तो वो टॉपिक पढ़ने में बहुत मज़ा आता था कि व्हाट आर दे सेइंग अबाउट फेमिनिज्म. उसके स्कॉलर्स याद रखने पड़ते थे, उसके लिए मैं अलग लिख देती थी. बट दैट बेसिक क्रक्स ऑफ हाउ फेमिनिज्म डेवलप्ड, हाउ वेयर इज इट गोइंग राइट नाउ, आई एक्चुअली वांटेड टू लर्न अबाउट इट. तो मेरे लिए ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ याद करना है उन्होंने क्या. 2-3 रिविजन्स के बाद वो ऑटोमेटिकली आ गया था एंड आई डिडंट हैव टू give too much. But from geography, but of course everyone is different, everyone has their own way. But that I think you enjoy what you're, if you're giving so much time, usko thoda sa और थोड़ा और go in deeper, enjoy reading, try to, don't see it as रटना है या वो करना है. Learn, see it as knowledge, see what is happening around world. People are giving theories of feminism, why they are giving theories of feminism. See it something like that. And I think इनिशियली हो सकता है थोड़ा बहुत हिकअप्स आते हैं. मेरे लिए तो बिल्कुल ही नया था टॉपिक. ज्योग्राफी तो इट्स मोर फैक्ट्स बेस्ड, ऐसा हो रहा है तो उसका रिजल्ट ऐसा आएगा. पॉलिटिकल साइंस इज एब्स्ट्रैक्ट, व्हाट पीपल, इट्स इंटरप्रिटेशन बेस्ड कम्प्लीटली. बट इट हैज़ इट्स ओन वैल्यू. उसमें पढ़ने का अलग ही मज़ा है. और मुझे आई थिंक ज्योग्राफी से ज़्यादा पढ़ने में मज़ा मुझे इसमें आ रहा था. So I think give it some time also, be patient with it over time, but try to get attached to it and हो जाएगा धीरे धीरे. जितना पढ़ोगे आई थिंक खुद मज़े से पढ़ोगे तो खुद अंदर से वो फीलिंग आ जाएगी दैट यू आर एंजॉइंग इट.
There's someone at the back also. मैम एज यू सेड कि आप 4-5 साल पहले से प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैम प्रीलिम्स के लिए स्क्रैच से जीएस दोबारा स्टार्ट करना, बिकॉज आपने ब्रेक भी लिया, उसके बाद दोबारा स्टार्ट किया, तो आपने स्क्रैच से जीएस को दोबारा से कैसे प्रिपेयर किया? नहीं, इट वाजंट स्क्रैच फॉर मी. थोड़ा बहुत तो याद रह ही जाता है, ऐसा नहीं आता कि बिल्कुल ही भूल जाते हो. बट सोर्सेस तो मेरे पास सारी बुक्स थी. करंट अफेयर्स वाला पोर्शन था जो स्क्रैच वाला हो जाता है, बिकॉज करंट अफेयर्स नहीं हो जाते. वही मैम कि उसको करंट अफेयर्स के साथ, क्योंकि आजकल करंट अफेयर को एकदम कंटेम्प्रेरी अफेयर्स में कन्वर्ट, जो कोर आइडिया है उसकी जगह उस वो कहाँ से जुड़ा है उस पे ज्यादा फोकस रहता है आजकल पेपर में. तो उसको कैसे आपने सॉर्ट किया, वो भी जॉब के साथ? क्योंकि उसके लिए आपको टाइम तो कम ही यूटिलाइज करना होगा. एक तो जॉब के साथ तो मैंने अपना रूटीन सही से सेट कर लिया था कि काम के वक्त पे मैं काम करूँगी, ऑफिस से आऊँगी वापस एंड आई विल स्टडी. तो ऑफिस जाने से पहले, ऑफिस जाने के बाद. और आई थिंक जैसे आजकल थोड़ा सा पैटर्न, अगर आप प्रीलिम्स का भी देखो, दे आर आस्किंग मोर अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग. जैसे पॉलिटी के आप क्वेश्चन देखोगे, ऑप्शंस इतने क्लोज होते हैं, अगर आप बिल्कुल ही रट के जाओगे तो आई थिंक इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट इन अ बेटर वे, देन आर एबल टू सॉल्व इट मच बेटर. तो पहले से ऐसा नहीं है, पहले की नॉलेज रिडंडेंट नहीं थी, पहले की नॉलेज हेल्प मी अ लॉट. करंट अफेयर्स वाला करंट अफेयर्स वाला मैंने फिर से करा था धीरे धीरे जितना हो सकता था. आई डिड इट अकॉर्डिंग टू माई कंफर्ट लेवल. ज़्यादा स्ट्रेस या बर्डन लेने के बजाय आई लिमिटेड माई सोर्सेज. किसी एक उसकी अगर कंपाइलेशन उठा ली तो सिर्फ उसको रेफर करती थी. द सेम बुक्स आई रेफर टू अर्लियर, उसी को ही करती थी मैं. और क्योंकि नई बुक पे जाऊंगी मेरा बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने उसको रिवाइज ज़्यादा करा जो पहले का था. बिकॉज वंस ट्वाइस आई रिवाइज, आई लर्न बैक अगेन. वो थोड़ा याद आना शुरू हो जाता है फिर बाद में. मेन फोकस आई डिड ऑन पॉलिटिकल साइंस वाला मेरा ज़्यादा. 1 महीना मैंने पॉलिटिकल साइंस पे तो बिल्कुल लगाया ही था, बिकॉज इट वॉज न्यू सब्जेक्ट फॉर मी बिल्कुल. तो मैंने उस पर जैसे थ्योरीज वाला पोर्शन में पढ़ रही थी, उसको समझने में उस पर तो मैंने पूरा ज़्यादा ध्यान लगाया था. जीएस वाला 1-2 बार मैंने रिवाइज करा था तो मुझे याद आना शुरू हो गया था. और मैंने ज़्यादा नहीं करा, जितना मेरे पास है मैंने सोचा पहले उतना अच्छे से कर लूँ, उसके बाद और आगे जाऊँ. पहले उतना ही याद हो जाए वही काफ़ी है. उतना भी याद नहीं रहता, मैं वही भूल जाती हूँ कई बार एग्जाम में जाने. उतना ही याद हो जाए वही बहुत है, उसके बाद आगे जाना चाहिए. मैम सी सेट के लिए थोड़ा सा ओवरव्यू. सी सैट का मैं अभी मुझे जैसे अभी बता रहे थे कि थोड़ा सा मुश्किल आना शुरू हो गया है. सो आई थिंक बेस्ट इज़ कि जहाँ पे आपको आसान लग रहा है, मुझे जैसे इंग्लिश वाला पोर्शन बहुत लगता था तो मैं पहले इंग्लिश वाले कर लेती थी. मैथ्स वाले जो आसान क्वेश्चन है, एटलीस्ट दैट यू अटेम्प्ट जल्दी जल्दी से, मतलब वो कर लो. और 66 जितने हैं वो लेकर आने हैं आपको, चाहे इंग्लिश में लेकर आओ, मैथ्स में आओ. डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करने की, जब आसान क्वेश्चन है तो डिफ़िकल्ट में क्यों टाइम वेस्ट करना है. सो आई थिंक मैथ्स प्रीवियस ईयर्स की थोड़ी प्रैक्टिस करके ठीक रहेगा. इस साल का मैंने अभी कोई बोल रहा था कि और भी डिफ़िकल्ट आया था सी सैट पिछले ईयर के कंपैरेटिवली. सो अगर डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ रहा है उसका, देन उस पर भी ज़्यादा टाइम लगाना शुरू. मैं ज़्यादा सी सैट नहीं पढ़ती थी, बल्कि मैं तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच वाले पोर्शन में सी सैट के ऊपर से पिछले साल का क्वेश्चन सॉल्व कर देती थी बस. बट अगर हो रहा है, अगर आपको पर्टिकुलरली डिफ़िकल्टी हो रही है तो मैथ्स की प्रैक्टिस जैसे बीच में शुरू कर दो. न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आई थिंक इंग्लिश की भी काफ़ी हद तक वो ठीक हो जाएगा. बट अगर डिफ़िकल्टी हो रहा है देन यू गेट सम हेल्प. मैथ्स की कोई अगर बुक है तो उसमें से रेफ़र करना शुरू कर दो. प्रीवियस ईयर के तो सॉल्व कर ही लो अच्छे से. और जहाँ पे आपको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट लग रहा है एटलीस्ट वहाँ पे देखो कि आप नंबर ना गवाओ. ठीक है, फिर वीक पॉइंट को अगर टाइम मिल रहा है तो वीक पॉइंट को, वो जीएस में भी है, व्हाटएवर इज स्ट्रॉन्ग पॉइंट, आसान क्वेश्चन में तो नहीं छोड़ना है. डिफ़िकल्ट जैसे हैं, डिफ़िकल्ट होगा तो सभी के लिए डिफ़िकल्ट होगा, तो कट ऑफ भी नीचे ही आ जाएगी जीएस में भी. बट एटलीस्ट आप, अगर आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो मैथ्स को और स्ट्रॉन्ग कर लो. इंग्लिश स्ट्रॉन्ग लग रही है तो इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस कर लो. थैंक यू मैम. मैम हेलो, आर यू लिसनिंग? Mic. Okay. हेलो हेलो You can ask मैम, आई वांट टू नो अबाउट. later in the question. हेलो You can
You can ask. How we can relate the current affairs to the PSIR. How do you do the current affairs for I'll repeat the question. How do you do the current affairs for the GS portion, and how can you relate it to PSIR one? Yeah. सो करंट अफेयर्स में मेन जैसे विजन की PT 365 मेंस 365 होता था, मैं ज़्यादातर उससे पढ़ती थी. ज़्यादा न्यूज़पेपर भी मैं रीड तो करती थी, एडिटोरियल्स आई यूज़ टू रीड, उसके बीच बीच में नोट्स बना लेती थी. बट मेनली मैं एक किसी भी कोचिंग का उठा लो जो आपको या कहीं से भी आपको पढ़ना है जो कि आपको अच्छे से डिटेल. मेरे पास टाइम कम होता था तो मैं आखिरी वाले जो ईयर एंड वाला होता था उसको रेफ़र करती थी. You're not able to hear it. ओके. सो जैसे मेरे पास टाइम कम होता था तो मैं कंपाइल्ड मटेरियल रेफ़र करती थी जिससे मेरा टाइम बच जाए. तो मैं विजन वाला रेफ़र करती थी, मेंस 365, PT 365. अगर किसी और कोचिंग का आपको लग रहा है कहीं और का कहीं, आई थिंक सोर्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट वॉट यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. वो कहीं अभी मुझे कहीं और किसी का मिलेगा जो मुझे अच्छा टाइम कम बचा के अच्छा नॉलेज देगा तो मैं उधर का ले लूँगी. सो आई थिंक मोर देन दैट वॉट यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट बाय इन्वेस्टिंग योर टाइम, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, रादर देन सम पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट. See, it is just providing you information. कोचिंग इंस्टीट्यूट वटेवर आप गूगल से भी पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना. आप न्यूज़पेपर से वो चीज़ पढ़ लो. इट इज़ नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको रेफर करना है. इट्स जस्ट एन ईजियर वे टू डू इट. ठीक है, आपको वही नॉलेज मिल रही है चाहे वो आपको कहीं से मिले. ठीक है, तो अगर आपको कहीं और XYZ का मिल रहा है, आपको लग रहा है कि आपको उधर से ज़्यादा अच्छे से मुझे लोगों ने बोला उनको कहीं और से अच्छे से समझ में आ रहा है, आपको कंफर्ट लेवल किसी और के साथ अच्छा है उसका लग रहा है, देन यू गो फॉर इट. आपको जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, देखो एग्जाम में ऐसा तो नहीं है कि उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन आएंगे या इस कोचिंग इंस्टीट्यूट, उनको तो उनके लिए तो बस वो क्वेश्चन है. अब वो क्वेश्चन आप कहाँ से पढ़ के कवर हो पा रहे हैं. मुझे लग रहा था कि मैं काफ़ी सालों से पढ़ रही थी, थोड़ा सा फेमिलियर भी थी, कंफर्ट भी था वहाँ का, तो मुझे लग रहा था कि हाँ ठीक है इतना काफ़ी है. बहुत सारे क्वेश्चन उसमें कवर नहीं भी होते, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो उसके बाहर आते हैं कहीं और कोचिंग के उससे कवर हो रहे हो. बट मुझे लग रहा था कि ज़्यादा सारा कवर करने के बजाय एक बेसिक मिनिमम तो कवर हो जाना चाहिए. जी प्रीलिम्स के लिए, कट ऑफ क्लियर करने के लिए या GS के लिए, आई शुड हैव बेसिक मिनिमम फॉर एवरीथिंग, चाहे वो कहीं से भी मिले. मैं कॉन्सेप्ट्स गूगल भी करती थी जब मुझे लगता था कि नहीं नहीं ये इनके पॉइंट्स अच्छे नहीं आ रहे, तो मैं गूगल कर देती थी पॉइंट्स. एग्जाम्पल्स उठाने के लिए, एथिक्स की केस स्टडी के एग्जाम्पल्स उठाने के लिए मैं गूगल कर देती थी कि कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स मिल जाए. सो आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. उसके लिए मेन इम्पॉर्टेंट है सिलेबस, कि आप सिलेबस देख के और उसको साथ में रख के रादर दैन कि इसका ही हमें रेफ़र करना है, टेक दैट एज ए टॉपिक. उसके साथ आप गूगल भी कर सकते हो इफ़ यू आर मोर कंफर्टेबल कि आपको एक जगह पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं. सो यू कैन वेरी वेल प्रिपेयर फॉर द टॉपिक. और सेकेंड वाला था GS का और पॉलिटिकल साइंस का, PSIR का, दैट करंट अफेयर्स यू कैन यूज इन political science आंसर्स ऑल्सो, बट ऑफकोर्स मेन आपका आंसर उसमें थियोरेटिकल ही रहना चाहिए. GS वाला आंसर जैसे आप कुछ रीज़न दे रहे हो एज एन एग्जाम्पल, आप उसको सब्सटैंशिएट कर सकते हो, बट इसमें इट्स मच मोर बेटर इफ़ योर सब्सटैंशिएशन कम्स थ्रू अ थ्योरी और सम स्कॉलर. आप एग्जाम्पल उसमें यूज़ कर सकते हो, IR में एग्जाम्पल्स यूज़ कर सकते हो. IR के तो क्वेश्चंस भी क्या हो रहा है आपके आसपास कई बार वही आते हैं. सो एग्जाम्पल्स नो डाउट ऑफ GS वाला पोर्शन, जैसे ट्रेड वाला है, ट्रेड की फिगर आपको कहीं GS के मटेरियल से, IR का मटेरियल है उसमें से मिल रही है, देन यू कैन यूज़ इट. बट दैट इज़ वॉट द डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर, what I feel is differentiating factor in optional and GS is optional is much more theoretical answers, GS is much more थोड़ा current affairs based. बट इसमें अगर आप
थोड़ा अपने थ्योरी यूज़ करोगे, अपने कॉन्सेप्ट्स यूज़ करोगे, दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग सीन. नहीं तो फिर तो आंसर में कोई डिफरेंस नहीं बचेगा. द सेम आंसर यू विल राइट फॉर जीएस ऑल्सो एंड पॉलिटिकल साइंस ऑल्सो. सो उसमें यही डिफरेंस आएगा. जीएस में आप थ्योरी यूज़ करोगे तो वो बहुत अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा कि जनरल स्टडीज़ के उसमें थ्योरी यूज़ कर रहे हैं. सो वो थ्योरीज पॉलिटिकल साइंस के पेपर के लिए ही बनी है, वो उसमें ही यूज़ करने सही है. ठीक है. मैम मैम आप 5 साल मोटिवेटेड कैसे रही? Yeah, that's a very important question. So, so for the people who are sitting at the back, he's asking how मैं motivated कैसे रही 5 साल. So I think my motivation graph was actually declining. पहले साल I was very enthusiastic. I was straight out of college और मुझे बहुत मज़ा आता था पढ़ने में. So I was very high on motivation कि बहुत अच्छा करना है, बहुत अच्छा. And I actually did very well. But I think over the time, मतलब करते करते I had that sense it was a declining curve. I could maybe 276 rank आ गई, but personally I feel for me as a person I wasn't able to balance it very well. मतलब बस पढ़ाई के साथ I wasn't able to do other things that I actually enjoy doing. इस बार का ये था, इस बार what was the differentiating factor was that I was working and my job profile. So I'm as you know I'm in Indian Audit and Account Service. So I am the Deputy Accountant General. We have a social sector. So I do the audit of all the departments of Uttarakhand state related to health sector, education sector, agriculture, water resources, etc. All the social sector departments. So my job profile itself gave me an opportunity to go and see what is happening. जैसे हम ऑडिट का अगर आपने पढ़ा हो तो परफॉर्मेंस ऑडिट होते हैं, फाइनेंशियल ऑडिट होते हैं, कंप्लायंस ऑडिट होते हैं. सो दे गिव अ लॉट ऑफ स्कोप टू एक्चुअली गो एंड सी. सो आई यूज्ड टू टॉक टू पीपल. मैं CHC जाके देखती थी कि हाउ इज इट एक्चुअली हैपनिंग. लोगों से बात करती थी. पेशेंट्स आई हैव एक्चुअली स्पोकन टू डॉक्टर्स देयर. कायाकल्प स्कीम है वो मैंने देखी वहाँ पे कैसे हो रही है. ये जो सारा जो भी गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं आई एम ऑडिटिंग दो स्कीम एंड आई एम सीइंग हाउ आर दे बीइंग इम्प्लीमेंटेड ऑन ग्राउंड. एग्रीकल्चर का है, हमारे ऑडिट्स हो रहे हैं, PM किसान का ऑडिट हुआ था. सो दोज आर नॉट जस्ट स्कीम्स फॉर मी. आई हैव स्पोकन टू पीपल. आर दे एक्चुअली गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ स्कीम और नॉट, how and what time. So that I could relate to those things. So for me I was actually seeing those things and I felt that being a part of administrative services I wanted to be there on that job in that place and try to build up systems or to improve upon the existing ones. So that was a huge motivation for me. Because I had spoken to people, हमारी जैसे हमारे उसमें entry conference होती है वगैरह. So I had actually spoken and I felt that I want to be there. I want to be part of that profile. And I think that was one of a big motivation factor for me because I actually got to experience those things. उसके बाद आई enjoyed studying. तो जब भी मुझे ब्रेक लेना होता था तो मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ लेती थी बिकॉज इट वॉज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर मी और मुझे मज़ा आता था. सो दैट ब्रेक में मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ लेती थी. एंड दिस टाइम ऑल्सो आई हैड अ वेरी बैलेंस्ड रूटीन. सो इस बार ऐसा नहीं था कि मैं घंटों पढ़ रही थी, सब कुछ छोड़ दिया था. सो मेरा मॉर्निंग रूटीन होता था. आई यूज टू डू मेडिटेशन, आई यूज टू एक्सरसाइज, देन आई यूज टू स्टडी, आई यूज टू गो टू ऑफिस, आई यूज टू रिटर्न बैक अगेन एक्सरसाइज, देन आई यूज टू स्टडी अगेन और फिर सो जाती थी. तो ये मेरा रूटीन. सो आई डिडंट, ऐसा नहीं रहा कि मैं बस 24 घंटे ऐसे पढ़ती रही थी. आई यूज टू टेक दैट रिफ्रेशिंग ब्रेक ऑल्सो इन बिटवीन एंड दैट ऑल्सो एनर्जाइज मी. मुझे मज़ा आता था. फिर एक्सरसाइज करने के बाद पढ़ती थी ना तो मुझे और आई थिंक और अच्छे से पढ़ पाती थी मैं. सो बिकॉज आई हैड दैट बैलेंस ऑल्सो. सो ऐसा नहीं था कि एक टाइम के बाद, क्योंकि शुरुआत में जब आप पढ़ते रहते हो इतने घंटे, शुरुआत में बहुत अच्छा जाता है, फिर उसके बाद कम होना शुरू हो जाता है बिकॉज यू आर नॉट एबल टू कीप अप दैट प्रोडक्टिविटी. बट इफ़ यू हैव दैट बैलेंस रूटीन, आई थिंक ओवर द टाइम यू आर एबल टू सस्टेन इट फॉर मच लॉन्गर टाइम. दैट वॉज no, I didn't have time for anything. I had those 3 months. उसमें 1 महीने में 1.5 months I studied for political science. तो I think उतना भी सही से कवर नहीं हो पाया था. I remember कि मुझे एग्ज़ाम के टाइम पे सारे स्कॉलर्स के नाम भी याद नहीं आ रहे थे. तो I think उतना भी हो जाता अच्छे से. That would have added my score much more. तो
आई थिंक आई रेफर्ड ओनली दैट मच, उसके आगे कुछ नहीं करा। उसके आगे मुझे कुछ पता भी नहीं था, आई डिडंट नो ऑल्सो, मुझे बुक्स भी नहीं पता कौन सी और बुक्स है। मुझे उतना रिसर्च करने का भी टाइम नहीं मिला था। आई थॉट कि मैंने बस सिलेबस उठा लिया था कि मैम के नोट से सिलेबस का टॉपिक कवर हो रहा है या नहीं हो रहा, तो और हो रहा था, ज़्यादातर टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, कुछ वो PDF वर्जन में थे, ज़्यादातर हो पा रहे थे, तो मैंने बस उतना कर लिया था, आगे नहीं करा। What's the prominent thing which you inculcated in yourself that made you through to clear this exam in every attempt you gave? The, Hello. okay. So she's asking what is one thing I inculcated in myself that helped me clear this exam year after year. So I think one is that discipline. That discipline and consistency is very important. मैंने कभी भी for granted नहीं लिया चीज़ों को कि चलो कि कोई बात नहीं, मैंने पिछली बार एग्जाम क्लियर कर लिया, तो अभी भी if you ask me to study, I will not take this rank or anything for granted. I will again give it my 100%. मैं अभी से पढ़ने बैठ जाऊंगी and I'll again give in all the hours. So I will not take anything, even if I'm scoring good in suppose essay, ethics, GS या political science, I will not take it for granted again. So मैं फिर से मैं पूरा discipline routine follow करके, and that is important. Even key to tackle prelims is I think एक तो revision is important. ठीक है, जितना रिवाइज करोगे एंड दैट क्लैरिटी स्पेशली फॉर सब्जेक्ट्स इफ़ यू सी लाइक पॉलिटी, इकोनॉमी, जोग्राफी, इसके थोड़े क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आते हैं रादर दैन करंट अफेयर्स वाला. सो आई थिंक रीडिंग दैट अगेन एंड अगेन, हैविंग दैट, उसमें से देखो आप डिवाइड कर लो कि ये चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं एंड दीज आर ईजियर सब्जेक्ट्स. जैसे एंशिएंट हिस्ट्री के आप देखोगे तो रिलेटिवली थोड़े डिफिकल्ट आते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं, नहीं पता होता. सो एटलीस्ट जो आपको पता चल रहा है ये क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, तो उन सोर्सेज को अच्छे से कर लो. और एग्जाम के टाइम में एटलीस्ट यू कैन हेल्प एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस. आपको ऑप्शन, अगर आपको आंसर पूरी तरीके से याद नहीं है तो आप कम से कम उस नॉलेज के बेस पे एलिमिनेट करने में एटलीस्ट आपकी मदद होगी. दैट इज द थिंग. मैम हाँ. मैम नहीं फॉर नहीं अब मैं बता रही हूँ, मेरा उतना भी सही से कवर नहीं हो पाया था. तो Ma'am, how did you sharpen your answer writing skills, particularly for PSIR? Like you started. She was asking. Acha, okay, she is asking. Let her complete it. टेस्ट सीरीज मैंने बीच में ही स्टार्ट कर दी थी. एज आई यूज टू स्टडी आई यूज टू राइट. मेरे पास टाइम 3 महीने का ही था, तो मैं उसको अलग अलग नहीं कर सकती थी. सो मेरे टेस्ट सपोज पहले सेक्शन का है, उससे पहले मैं 1 हफ्ता या 2 हफ्ता जो था वो मैं पूरा उसको पढ़ती थी. फिर उसके बाद मेरा प्रीलिम्स से मेंस वाले के बीच में ही ज़्यादा पढ़ाई. नोट्स मेरे पहले से थे बिकॉज ऑनलाइन मैंने क्लासेस ज्वाइन करी थी, नोट्स बने हुए थे, बट क्योंकि ऑफिस भी चलता था सो आई वॉजंट एबल टू कॉन्सेंट्रेट. बट एटलीस्ट मेरे पास था कि मेरे पास ये नोट्स हैं जिसमें हर टॉपिक कवर हो रहा है, उसके बीच में मैं फिर पढ़ती थी. बट आई वुडेंट एडवाइज इट टू यू. आप जितना पहले से हो सके उतना पहले से करें. टेस्ट सीरीज इज मेंट फॉर, वो रिविजन वाला पीरियड ही होता है ज़्यादातर. तो अभी आप वो क्लैरिटी गेन कर लीजिए और रिविजन वाला जैसे जैसे टेस्ट आए उससे पहले रिवाइज करते रहेंगे. इन्वायरमेंट के लिए मैं शंकर वाला पढ़ती थी. वो तो फिर 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा ना, ऐसा 2-3 बार. तो अगर आपको लग रहा है, देखो मेन आपको है, आपको कुछ ऐसा वो नहीं है, आपको क्वेश्चंस कहीं से भी सॉल्व हो, कहीं किसी भी XYZ कहीं से भी सॉल्व हो रहे हो जाना चाहिए. मैं अपने सोर्सेज बता रही हूँ जो मुझे, क्योंकि मैं इतने साल से पढ़ रही थी तो आई वॉज कंफर्टेबल विद इट. जैसे इन्वायरमेंट का शंकर वाला पढ़ लेती थी और PT 365 वाला या मेंस 365 वाला पढ़ लेती थी. तो आई वॉज कंफर्टेबल और मुझे लग रहा था कि इतने से हो जाएगा, सो आई वॉज फाइन विद इट. अगर आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है देन आई विल सजेस्ट कि थोड़े बहुत अगर आपको सोर्सेज और कहीं से आ रहे हैं, यू जस्ट ब्राउज इट थ्रू, लिस्ट बना लो सोर्सेज की, और क्वेश्चंस कहाँ जो आपको समझ में आ रहा हो, क्वेश्चंस जहाँ से आंसर हो पाए, दैट यू गो थ्रू. ज़्यादा मत करना. अगर 2-3 बुक्स में हो पा रहे हो देन गो विद इट. अगर सोर्सेज ज़्यादा होंगे फिर आपको उसके नोट्स बना के उसको कम रखना पड़ेगा. ठीक है, तो जितने कम सोर्सेज रिविजन में वो उतनी आसानी रहेगी.
नहीं, मैंने नोट्स नहीं बनाए थे ज़्यादा, मैं डायरेक्टली बुक से ही पढ़ लेती थी। अब जैसे लक्ष्मीकांत है या कुछ है तो मैं बुक से ही पढ़ लेती थी, फिर उसके नोट्स तो फिर सेम ही हो जाते। तो जो जिस बुक से मुझे ज़्यादा, जैसे मैं करंट अफेयर्स के भी जैसे जो डायरेक्टली बुक से आ रहा है फिर उसके नोट्स तो फिर कार्बन कॉपी हो जाएंगे ऑलमोस्ट, तो मैं उधर से ही पढ़ती थी, उधर से ही रिवाइज करती थी। बट इफ़ यू आर फीलिंग कंफर्टेबल, आपको नोट्स बनाने से ज़्यादा अच्छे से याद रह रहा है, मुझे याद रह ज़्यादा, मुझे 4 साल हो गए थे पढ़ते हुए, तो मुझे याद रह गया था ऑलमोस्ट वो। बट आपको लग रहा है कि आपको उस से याद अच्छे से रहेगा नोट्स बनाने से। कुछ कुछ होता है, जैसे पॉलिटिकल साइंस के मेरे हैंड रिटन नोट्स थे, और मुझे क्योंकि एक तो मैंने खुद लिखा हुआ था उसे, तो मुझे एक ज़्यादा पढ़ने में और मुझे याद भी रहता था। अगर आप इफ़ यू आर फीलिंग कंफर्टेबल, आपके पास टाइम है, हैंड रिटन नोट्स टेक टाइम ऑल्सो, टाइम है तो यू गो फॉर इट, बना लो आप। Good evening, ma'am. Ma'am, my question is, ma'am, how did you approach answer writing for PSIR in general? And ma'am, did you start answer writing from the very beginning, or when the syllabus was halfway through, or it was completed? What was your approach? सो आई मैंने पॉलिटिकल साइंस के आंसर्स तो मैंने पहले तो बेसिक से जो पूछ रहा है मैं सीधा बताती थी, जैसे जो जो पूछ रहा है, कुछ ज़्यादा वो करने की कोशिश नहीं की थी। आखिरी में मैंने थोड़ा सा उसको ऐड करने, जैसे जैसे मेरी रिवीजन शुरू हुई तो मैंने उसको और जो फीडबैक भी आ रहे थे टेस्ट सीरीज में उसको इनकलकेट करने के साथ साथ, जैसे मैं जीएस वाले आंसर में पॉइंट्स में लिखती थी, देन आई गॉट अ फीडबैक, यू डोंट राइट पॉलिटिकल साइंस आंसर्स इन पॉइंट्स, राइट इन पैरास। सो मैंने उसको अडॉप्ट करने की कोशिश की, और फिर उसमें मैंने थ्योरीज और ऐड करनी शुरू कर दी थी स्टार्टिंग में। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड आई स्टार्टेड हाफ वे और नॉट। हाँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो मैंने कर ली थी ऊपर ऊपर से, जैसे पार्ट जैसे फर्स्ट वाला था सेक्शन ए, सो वो मैंने जैसे कवर कर लिया था उसके बाद। बट बिकॉज जब टाइम कम होता है, आई वांटेड, एक तो चीज़ थी कि मुझे सिलेबस पूरा कवर करना है और अच्छा आंसर भी लाना है, बिकॉज अल्टीमेटली माई आंसर, दैट इज़ द थिंग विच इज़ गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड माई आंसर्स। सो मैंने दोनों के बीच में गैप बनाने की कोशिश की थी कि अगर मैं एक हफ्ता 10 दिन, जैसे मुझे याद है सेक्शन ए में मुझे बहुत टाइम लग गया था उस वक्त पढ़ते पढ़ते, तो मैंने उसको पूरा ख़त्म करा, उसके बाद मैंने टेस्ट लिखा था उसका। ये तो मैं करती थी, मैं आधा अधूरा तो नहीं छोड़ती थी, पूरा ख़त्म करती थी उसके बाद टेस्ट लिखती थी। बट आई ऑल्सो मेड श्योर कि मेरा उतने टाइम में सारे सिलेबस तो कंप्लीट हो जाए, चाहे मैं फिर से रिपीट टेस्ट में शायद पॉलिटिकल साइंस का नहीं लिख पाई थी, जो बाद में एंड वाले होते हैं, टाइम नहीं बचा था मेरे पास लिखने के लिए। बट स्टार्टिंग वाले मैंने हर उसका एक टेस्ट तो लिख लिया था कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ऐसा ना हो कि सिलेबस ही मेरा छूट जाए, फिर तो बहुत ही डिज़ास्टर हो जाएगा। तो सिलेबस हो जाए। और आंसर राइटिंग, आई थिंक अगर आंसर राइटिंग आप स्टार्टिंग में, आई विल एडवाइस कि जितना लिखो तो उतना सही है। मुझे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस थी, जैसे जीएस वाला भी मैंने छोड़ दिया था, इतना वक्त से मुझे था 2-3 उसमें मुझे पता चल गया था कि हाँ ऐसे ऐसे लिखना है। तो और अगर मुझे लग रहा था कि मेरा टाइम आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा जा रहा है और मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो फिर मैंने सिलेबस पे पहले ज़्यादा ध्यान दिया था कि पहले तो सिलेबस ख़त्म करना है, उसके बाद आंसर पे जाना है। Ma'am, just one more question. Ma'am, like you said that आपको feedback मिला कि like the way you were writing your GS answers, it's not the synonymous to the way we write our PSIR answers. तो मैम जैसे GS में we make like हम लोग charts वगैरह बना देते हैं सर्कल बनाकर उसके वो सब, तो ये सब PSIR में नहीं, basic simple paragraph form, नहीं, yeah, simple yeah. approach. Because it's a theoretical paper, no, it's not that. मतलब ऐसा मुझे लगता है, अब क्या पता आप दे देते हो नंबर, आई नो वन नोज कि हाउ दे इवैल्यूएट द आंसर शीट्स। तो मुझे तो पर लगता है कि बिकॉज इट्स अ थ्योरेटिक एंड दैट इज़ व्हाट पीपल हैव बीन सेइंग ऑल्सो, जिनका क्लियर होता है। आई हैव ऑल्सो रेड सो मैनी पीपल्स कॉमेंट्स, दे हैव ऑल्सो सेइंग, तो मतलब इतने लोग कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही कि सबका उसी से क्लियर हो रहा है। सो बट आई थिंक जीएस में आई थिंक यू कैन यूज इट, बट वही है पॉलिटिकल, अब वो ऑप्शनल सब्जेक्ट उन्होंने बनाए हैं इसलिए वो है कि आपकी थियोरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चेक करें। So I think in that sense, having that focus on the theories or researches वाले पे, that will help. Ma'am, one last question. Ma'am, my question is like, ma'am, जब आप वो पढ़ते थे, so ma'am उसमें जो हम लोग, जो आपने कहा था कि like you value added some things from the topper copies, तो मैम जो आपका value addition material था for your answers, beat scholars, beat books, तो वो सिर्फ आप topper copies पे rely करें या
कोई और भी आपका उसके लिए नहीं, सोर्स था? टॉपर्स कॉपी से मैं जैसे फॉर्मेट देख लेती थी कि वो कैसे लिख रहे हैं एंड वेदर आई रिक्वायर्ड सम अदर थिंग ऑल्सो और नॉट. तो जैसे मैंने 2-3 जो टॉपर कॉपीज थे मैंने सबके देखे कि एवरीवन वाज ऑलवेज ऑलमोस्ट यूजिंग द सेम थिंग. और जैसे एक सत्यम गांधी सर का था, उसमें वो 2-3 थ्योरीज अलग भी यूज़ कर रहे थे. तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, एक ये है, अगर टाइम मिलेगा आई सर्च बियॉन्ड दिस ऑल्सो. बट अगर टाइम नहीं मिलेगा, एटलीस्ट बेसिक मिनिमम कवर हो जाए. टाइम मिलेगा तो वहाँ तक पहुँचाने की उसको कोशिश करेंगे. बट काफ़ी हद तक देखोगे आपको सबके आंसर्स में ऑलमोस्ट वैसा ही है. अगर आपको वही याद रह जाए, आई थिंक प्रॉब्लम वही है कि वही याद नहीं रह पाता. मुझे याद नहीं हुआ था, मुझे याद नहीं रहा था. मैं भी फेमिनिज्म वाले तो 2-3 स्कॉलर मैं भी भूल गई थी, कि नाम भूल गई थी मैं भी. तो फिर वही याद रह जाए, आई थिंक उतना भी काफ़ी रहता है कि उतना ही याद रह जाए. तो Hello, ma'am. Ma'am, first of all, very congratulations to. नहीं, प्रीलिम्स के मैं आज सच कोई नोट्स नहीं बनाती थी. प्रीलिम्स का मैं डायरेक्टली मटेरियल से ही रेफर करती थी, उसको रिवाइज कर लेती थी बहुत बारी. हाँ, तो जैसे बुक्स हैं, तो बुक्स में क्योंकि पढ़ते पढ़ते मैंने उसके साइड में ही लिखना शुरू कर दिया था, साइड में, बीच बीच में. जैसे मेंस के लिए मैं हाईलाइट करती थी, जैसे पॉलिटिकल साइंस के भी जैसे जैसे रिविजन्स हो रही है मैं उसी में हाईलाइट कर देती थी. जैसे मैम सजेस्ट करती है कि मार्जिन्स बनाने में मार्जिन्स बना के वो करती थी. तो वैसे मैं उसी में करती थी. अलग से बनाने में आई थिंक एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और फिर अगर आप फिर से फ्रेश अटेम्प्ट देना चाहते हो, अगर आप उसी में लिखते हो, दैट वाज मच मोर यूजफुल टू मी. ठीक है, तो इट वाज फॉर मी इट वाजंट डिफरेंट. प्रीलिम्स के मैं नोट्स नहीं बनाती थी, मेंस के नोट्स मैंने अपना बना के रखा होता. अब इतने साल का मेरे पास पूरा इकट्ठा हो रखा सब. हाँ, वो ही मैंने कंटेंट रिवाइज करा था. मैंने कुछ नया नहीं करा था, मैंने सिर्फ वही कंटेंट रिवाइज. करंट अफेयर्स मैंने नए करे थे, बाकी सेम था. Hello, ma'am. 1 minute. Ma'am, first of all, very congratulations Thank to you, for thank you so securing much. such a decent rank, ma'am. I want to ask कि how do you cope up along with taking GS classroom course and optional going on? मतलब on a daily basis, what else has to be studied so that maximum time for revision is to be kept for prelims? जीएस का मैंने क्लासरूम कोर्स नहीं करा, जीएस का मैंने कोई कोर्स नहीं करा था. For us, ma'am. अच्छा, फॉर यू, यू आर राइटिंग 2023 वाला ना, तो आई थिंक यू हैव टू फॉर्म योर ओन शेड्यूल. कितना टाइम आप क्लासरूम में लगा रहे हो, कितना टाइम पॉलिटिकल ऑप्शनल वाले उसमें लगा रहे हो, फिर जितना टाइम आपको बीच में, एटलीस्ट आई थिंक फॉर नाउ इफ़ यू गो बैक एंड रिवाइज जो आप पढ़ रहे हो उतना भी काफ़ी रहता है. एटलीस्ट उतना आपको अच्छे से समझ में आ जाए. अगर आप साथ साथ में रिवीजन करते रहोगे उसी चीज़ की, आई थिंक काफ़ी तो वहीं पे क्लियर हो जाती हैं चीज़ें. ठीक है, फिर बाद में आपको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको, फिर बाद में आपको सिर्फ रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी. मैं जब पढ़ रही थी मैंने एक ये गलती करी थी कि जब क्लासेस ऑनलाइन चल रहे थे मैंने उसको साथ साथ में रिवाइज नहीं करा था. तो मेरे लिए जब मैं 2-3 महीने बाद फिर से गई उस पर पढ़ने के लिए, मेरे लिए वो समझना हुआ फिर से. अगर मैं उसका रिवाइज कर रही होती तो मुझे पिछला रिविजन याद रहती, और मैं बाद में जब पढ़ती सिर्फ उसको रिवाइज करती. सो आई थिंक दैट आई कैन टेल फ्रॉम माई मिस्टेक कि आप जैसे जाएं. इट्स डिफ़िकल्ट ऑल्सो, मन भी नहीं करता है कभी कभी रिवाइज कि घर पे जा रहे हो आराम से जाके बैठ जाएं, यही मन करता है कि रिवाइज करने का. बट इट्स इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ समथिंग विच कम्स फ्रॉम विद इन यू, और वही डिफरेंस एक्चुअली एंड में बन भी जाता है. कोई जाके रोज़ रिवाइज कर रहा है, कोई जाके आराम कर रहा है, तो थोड़ा 1 घंटा लगेगा, ऊपर ऊपर से पढ़ लो, उसको समझ लो बस. सो इन राइट नाउ आई थिंक रिविजन इज़ फाइन. एक बार वो ख़त्म हो जाए फिर उसके बाद यू कैन मतलब आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते करते भी उसको साथ में रिवाइज कर सकते हैं. दैट कैन हेल्प. So right now, doing revision along with newspaper is enough. हाँ, न्यूज़पेपर्स तो आई थिंक इट हेल्प्स ऑलवेज कि यू रिमेन अपडेटेड विद व्हाट इज़ हैपनिंग. कोई भी आउट ऑफ ब्लू चीज़ नहीं आएगी. न्यूज़पेपर्स अभी के लिए 2023 के लिए इफ़ आई वाज इन योर प्लेस आई वुड बी रिवाइजिंग वट एवर इज़ हैपनिंग. उतना मैं नहीं छोड़ती कि बिल्कुल चीज़ कि मैं भूल जाऊँ, फिर तो वो नोट्स रिडंडेंट हो जाएंगे अभी जो आप पढ़ रहे हो, जब आपके लिए वो नई चीज़ हो जाएगी. तो एटलीस्ट आई विल मेक श्योर वट एवर आई एम रीडिंग स्टडिंग हेयर आई गो बैक एंड रिवाइज. उतना मैं अच्छे से कर लूँ जितना हो रहा है.
और न्यूज़पेपर साथ साथ में करती Ma'am, हूँ। one last thing, ma'am. Ma'am, up to till what time we have to cover our syllabus and optional for once? Till what time of the month? ऑप्शनल का आई विल एडवाइस कि देखो प्रीलिम से पहले तो अच्छे से हो ही जाए, अंडरस्टैंडिंग तो अच्छे से हो जाए, बीच में इट इज़ अ रिविजन वाला टाइम फॉर एवरी सब्जेक्ट, इट्स अ रिविजन वाला टाइम, और दैट विल हेल्प यू रिमेंबर. The more revisions you have, the better you are able to recall the things during the exam also. So एक पूरी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से विद वन रिविजन आई विल एडवाइस कि प्रीलिम से दो, मतलब प्रीलिम्स आप लिखेंगे तो थोड़ा टाइम देंगे उसको, 2 महीने पहले तक तो हो जाए अच्छे से. 1 minute, there was something. 2-3 more questions. हाँ? हो गया? सो आई यूज टू डू दैट इन बिगनिंग. इस वाले में क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, मैं बहुत कम ऑफिस भी जाती थी फिर, तो मैंने छोड़ दिया था. बट देन यू शुड ऑफ कोर्स, अगर आपको लग रहा है कि 50% न्यूज़पेपर्स आ रहे, व्हाई शुड यू लीव इट, देन यू शुड डेफिनेटली मेक इट. बट उसमें टाइम मैनेज करके चलना हमेशा, कि क्योंकि न्यूज़पेपर में मेरे साथ होता था कि मैं 2-3 घंटे न्यूज़पेपर ही पढ़ती रह जाती थी, तो फिर मुझे लगता था कि इतना टाइम मैं न्यूज़पेपर में गंवा रही हूँ और उसका कुछ वैल्यू एडिशन आ नहीं रहा है, तो फिर इसलिए मैंने कम कर दिया था अभी लास्ट वाले उसमें. बट इफ़ यू अभी जैसे प्रीलिम्स में आप बता रहे हैं कि अगर मैं देखती और मुझे लग रहा है कि 50% न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं, आई वुड हैव डेफिनेटली देन गॉन फॉर इट. फिर उसमें भी आप जैसे मैं जीएस के पहले बनाती थी तो मैं उसको डिवाइड कर लेती थी, जैसे पॉलिटी के, फिर सोसाइटी के, फिर जोग्राफी के, मतलब हिस्ट्री, सोसाइटी, जोग्राफी, पॉलिटी, आईआर और गवर्नेंस वाले, तो मैं उसको डिवाइड कर देती थी और उसके स्पेसिफिकली नोट्स बनाती थी मेंस के लिए, एग्जाम्पल्स ऐड करके उसमें. बट अगर न्यूज़पेपर से आ रहे हैं देन यू शुड डेफिनेटली, जो एग्जाम में आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग आपको काम करना है बस. नहीं बढ़ रहा है ना फिर वो आपको पिछले वाले ट्रेंड के हिसाब से, दैट इज द सेफेस्ट ऑप्शन दैट यू हैव. आपको बाहर का नहीं पता, आपको बस वही पता है कि वो क्या कर रहे हैं, दैट यू शुड एटलीस्ट कम. मैकेनिकली कैसे करोगे? या तो पेपर पढ़ोगे, ऐसे कैसे करोगे? 15% पढ़े, 50% माइंड में रहने के लिए मैम. वही तो पता है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने. मैम मैम जो प्रश्न फॉलो करो क्या वो सही है, क्या एंड तक मुझे ले जाएगी, क्या मतलब, तो वहां पे बात सही होती है. तो डायलेक्टिक्स करो. सो इसमें एक ये है, देखो कि एक तो आपको सबसे अच्छा सोर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपीएससी इज द मेन सोर्स. ठीक है, प्रीवियस ईयर पे अगर वो क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं तो एटलीस्ट, मेरे साथ भी होता था कि कई बार मुझे भी कमेंट्स में कई बार मिला है कि कुछ और करो, कुछ और ये करो, बट एटलीस्ट मैं पहले ही मेरी ये था कि एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले हो जाने चाहिए इधर इधर से. ठीक है, नहीं ऊपर ऊपर से वो मतलब एग्जैक्ट चीज़ तो नहीं मिलेगी कहीं भी, आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे, बट ये मुझे लगता था कि हाँ ये बेसिकली थोड़ा बहुत 50% कवर हो जाएगा. उसके बाद फिर मैं वैल्यू एडिशन करती रहती थी बाकी चीज़ें पे, करंट अफेयर्स के थ्रू. और मुझे भी कई बार जैसे एक तो आपको थोड़ी सी सेल्फ बिलीव रखनी, अगर आपको अपने सोर्स पे कॉन्फिडेंस है कि हाँ इससे हो सकता है, देन यू शुड बी कॉन्फिडेंट ऑफ दैट. ठीक है, रिस्क तो सबकी रहती है, आप ही की नहीं रहती, मेरी भी रिस्क रहती, क्या पता मैंने जैसे पढ़ा है उधर से नहीं कहीं और से आ जाता तो फिर मैं भी नहीं होती. बट थोड़ा तो कॉन्फिडेंस, दिस टाइम वन ऑफ द मेजर डिफरेंस वॉज दैट आई हैड दैट बिलीव कि ये अटेम्प्ट होगा तो ये मेरा अटेम्प्ट होगा, रादर देन पीपल टेलिंग मी कि यहाँ से करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, वट एवर. आई विल टेक इन सजेशंस, आई विल टेक इट वेरी पॉजिटिवली कि मेरे फायदे के लिए होगा, कहीं से होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स गोइंग टू बी माई डिसीजन कि मेरा कंफर्ट लेवल वहाँ से होना चाहिए. जैसे मुझे जीएस में बोला था कि पॉइंट्स के बजाय राइट इन पैराज, ऐसे नहीं ऐसे लिखो, आई वॉज मोर कंफर्टेबल इन राइटिंग इन पॉइंट्स, तो मैंने पॉइंट्स में लिखा. सो दैट शुड बी देयर, दिस इज़ योर अटेम्प्ट, दिस इज़ योर जर्नी, दिस इज़ योर एग्जाम, आप लिख रहे हो उसको, कोई और, किसी और का कुछ नहीं जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, किसी और का कुछ नहीं जाएगा, दिस इज़ योर जर्नी. सो यू शुड बी
मास्टर ऑफ इट, यू शुड बी मोस्ट कंफर्टेबल विद इट. जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा लिखो. यू टेक इन सजेशंस, आप एडवाइस लो पॉजिटिवली, ओपन ईयर्स, जस्ट कीप एन ओपन हार्ट, बट देन टेक इट्स इन्फॉर्म्ड डिसीजन, इट्स योर डिसीजन. किसी के आप दोस्तों से बात करते हो, कहीं बाहर का बात करते हो, जस्ट डोंट ब्लाइंडली फॉलो इट. सोचो कि आपके लिए सही है. सब लोगों का अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का. कुछ लोग जैसे बोलते हैं सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ो, रात में पढ़ो, कभी पढ़ो. सो इट्स योर whatever you are comfortable with, और उसी में ही आपको मज़ा आएगा. अपने हिसाब से ही पढ़ने में मज़ा आता है. Ma'am, how would you tackle the economy wala portion? It's more current affair based now. बेस तो क्लियर कैसे करना है. No, ma'am, basic of current affairs, how will you start it from the scratch? सो इकोनॉमी में फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देखा था कि सबसे पहले मैं अभी भी करूँगी तो मैं सिलेबस के सारे पॉइंट्स तो मैं कर ही लूँगी. जैसे मार्केटिंग वाला है या स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, जो भी है, आई विल मेक श्योर अगर गलती से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया उसमें से, आई विल नॉट लीव एनी स्कोप कि मुझे वो आता नहीं है तो तुम मतलब मैं सिलेबस ही कवर नहीं कर पाई. बट अगर मुझे लग रहा है कि बहुत करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं, देन आई विल मेक श्योर किसी भी करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन जैसे कुछ ले लिया एंड ऑफ द ईयर वाला, और उसको एटलीस्ट देखो, बहुत ही परफेक्शन वाला तो परफेक्शन तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी. तो आई विल हैव टू मेक श्योर वो गुड एवरेज वहाँ तक पहुँच जाए और उतना मुझे याद रहे. बिकॉज कई बार जितना आप पढ़ते हो वही याद नहीं रहता, उतना भी याद रह जाए, दैट इज़ ऑल्सो मोर देन इनफ. सो NCERTs फॉर बेस इट्स अभी जैसे आपके पास टाइम है, यू कैन वेरी वेल गो विद NCERT. जैसे 11th क्लास की NCERT जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की है, वो प्रीलिम्स में जैसे क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, डिमांड सप्लाई वाले, इन्फ्लेशन वाले, दैट वो आपको हेल्प करेंगे. पर जैसे GS में है, GS में फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक्स जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं, एटलीस्ट वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आए, वो मत छोड़ना कि वो नहीं कर पाए. उसके एग्जांपल्स अच्छे से एटलीस्ट उस पर बेसिक एक कवर करने के बाद आई यूज टू डू फिर करंट अफेयर्स. उसके बाद मेरे पास कभी टाइम बचता ही नहीं था. बट अगर टाइम बच रहा है उसके बाद और कुछ वो करो. आई थिंक दिस कैन बी द ब्रॉड स्ट्रैटेजी दैट आई विल सजेस्ट. Ma'am, hello. I think last question then based on बहुत टफ है, इन्हें बता दो. आई थिंक नहीं है टफ ना, वही तो मिथ है. Ma'am, क्यों डर जाते हो? डरते आगे ma'am, excuse me, ma'am. PSIR वाला नॉलेज यू कैन यूज़ मुझे भी हेल्प करता था. बट रिसर्चर्स, स्कॉलर्स के नाम वो GS वाले को समझ में नहीं आएंगे अगर आप ज़्यादा थ्योरेटिकल हो जाओगे. और उसमें थोड़ा सा आपको करंट अफेयर्स वाला रखना पड़ेगा क्योंकि वो GS का पेपर है, तो वो थोड़ा चलो. तो from Charu's entire discussion, what I could get is you will do something well if you enjoy that. Fine. So first thing is don't be skeptical. There are lot many things to be done. There is no limit for perfection. But whatever is basic minimum, you have to do it very nicely. And as she said that she enjoyed doing things. So there's lot in philosophy also. Bentham की philosophy भी मैंने बताई थी. You will do something only well when you will develop liking for it. And as I really like what she said is, political science became a part of her thinking, her personality, her life, and it was very, very spontaneously coming. So this is what is important, and that happens when you are not skeptical, you are not fearful, you are confident, and you enjoy doing things. And same thing I tell to all the students, that political science is one such subject. It makes a very positive contribution to your personality, and its importance goes beyond your optional paper. You need to know how to utilize it. As she was telling about essay, about ethics,
earlier also there were students like they used in ethics paper a lot of the quotes that we do in political science. So the only key to success, I believe, is love what you are doing. Enjoy that. Don't trouble yourself with unnecessary questions and worries. This is not the time to worry. This is a time to learn. Fine? If you have the right attitude, that is most important. तो एटीट्यूड होना चाहिए, विनर एटीट्यूड होना चाहिए. आगे जाकर के आई विल टीच मे बी फुकुयामा का एक कंसेप्ट है, एक फुकुयामा का तो नहीं है, नीचे का कॉन्सेप्ट है. एक होता है विनर मेंटेलिटी और एक होता है स्लेव मेंटेलिटी. ठीक है, तो अगर आपके पास विनर मेंटेलिटी है तो थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस. तो विनर मेंटेलिटी है क्या? यही तो सारी चीजें हैं कि यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव. यू शुड नो कहाँ पे आई हैव टू ट्रबल माई सेल्फ, दिमाग लगाना कहाँ है. देयर आर थिंग्स विच आर अनसर्टेन. जैसे इन्होंने कितना क्वान्टिफाई कर दिया, 15%, 50%, तो उसको कैसे पेपर में करोगे? ठीक है, पेपर पढ़ना है और कहीं से भी पढ़ो, एज व्हाट शी वाज सेइंग, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन पढ़ने का तरीका अगर नहीं आया तो कितना भी पढ़ने से कुछ नहीं होगा. कम पढ़ो लेकिन अगर समझ पाए, रिलेट कर पाए, अप्लाई कर पाए, तभी उससे कोई भी फर्क पड़ता है. मतलब तुम्हें खुद भी तो पता होना चाहिए कि मैं मैगजीन पढ़ रहा हूँ तो उससे मुझे क्या चाहिए, कहाँ पे वो एप्लीकेशन है. तो अगर खुद का दिमाग नहीं लगाया, और वहीं से तो ये फिलॉसफी स्टार्ट होती है कि क्वेस्ट फॉर गुड लाइफ यू रिक्वायर लॉजिकल थिंकिंग. सोचोगे तो रास्ता मिलेगा, और सिर्फ एंजॉय करो. बिकॉज एक दिन IAS बन गए, उस दिन की खुशी है, लेकिन एवरी डे देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू बी हैप्पी. आई थिंक these, like when you study all these things, you come to know about these great minds. These are the people who were in ancient time. We are studying now, and still they are so influential. So take the advantage. These are great minds. You will start inculcating these things. So obviously you will have a very different approach. The subject will change your approach, and you need to change your approach. ठीक है, अभी तक इसलिए कहाँ से पढ़ रहे ये इशू नहीं है. इशू ये है कि हमें कहाँ से क्या चीज समझ में आ रही है, और क्वेश्चंस है कि नहीं है. किसी ने बता दिया ये ऐसे पढ़ना है, नहीं. आर यू सेटिस्फाइड और नॉट? जैसे ये कह रहे हैं कि कब डाउट होता है, तो तुम्हारा माइंड ही तुम्हें सेटिस्फाई कर सकता है. ठीक है, और प्रोसेस है, हर एक स्टेज है. पहले ही दिन से तुम यू कांट बी एक्सपर्ट इन एवरीथिंग. तो हैव फेथ, कॉन्फिडेंस, एंजॉय. आई थिंक दैट्स द ओनली रूल. चारू, यू वांट टू ऐड समथिंग? सो थैंक यू चारू, थैंक यू फॉर कमिंग. एंड आई बिलीव तुम्हारा क्वेश्चन रह गया है. क्या है क्वेश्चन? मैं बता रही हूं कि नॉलेज कंपार्टमेंटलाइज नहीं है, कहीं से भी कुछ भी मिले. एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर तुमको ढूंढना है. ये नहीं सोचना है पेपर में कि ये GS का है या पॉल साइंस का है. वो तुम्हें इसलिए नहीं सोचना है कि एग्जामिनर ने जब क्वेश्चन बनाया तो ये सोच ही के बनाया है कि ये ऑप्शनल वाले से पूछना है और ये GS वालों से पूछना है. तो वो तो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है. तुम क्वेश्चन देखो, ये नहीं देखो कि पेपर 3 का क्वेश्चन है कि पेपर 2 का क्वेश्चन है. क्वेश्चन है और उसका आंसर है. और मैं ये कह रही हूँ कि रियल कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारे लोग इतने मिथ्स में रहते हैं. ठीक है, और बिना मतलब के लिए अपना ही केस स्पॉइल करते हैं. और जिसको बहुत क्लैरिटी है, डू लेस, लेकिन ये समझ आनी चाहिए कि क्या करना है. तो सिंपली एक ही फॉर्मूला है सक्सेस का, एंजॉय वॉट एवर यू आर डूइंग. और कोई फॉर्मूला है नहीं. आपका कोई क्वेश्चन? शायद आई थिंक इंटरव्यू.
So my interview was mostly because I'm working, तो Indian Audit and Account Services पे ही था, मेरे experience पे base पे ही था. Earlier I was in RPF, तो RPF के basis पे था. Political science का भी question था. Political science और RPF को उन्होंने link करके question पूछा था. So mostly, I think what they're looking for is your articulation, how much articulate you are, how much humble you are, how soft spoken. That's a personality test. So personality rather than I think knowledge, it's about personality. But again, what I can feel over the years, मैंने अभी तक 4 interviews दिए हुए हैं. So what I can say over the years is it's very subjective. You give it your best shot. आपके पास जो आपके हाथ में है, have उस पे कुछ don't leave anything to chance. बाकी तो डेस्टिनी है वो. आप यू कांट नो कि व्हाट द इवैल्यूएटर इज थिंकिंग, बट व्हाट इज इन योर हैंड्स, डू एवरीथिंग वेरी प्रिसाइसली, अच्छे से कर लो उसको. बी कॉन्फिडेंट, बी हैप्पी ऑफ योर सेल्फ, हैव दैट सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो. अच्छे से दो, सॉफ्ट स्पोकनली, हम्बल करके, बाकी फिर छोड़. बाकी तो आई थिंक रिजल्ट इज एनी वे. मैंने खुद आई वॉज जैसे ही मेरा इंटरव्यू ख़त्म हुआ था, थोड़े वक्त के बाद मैंने प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट की थी, बिकॉज रिजल्ट इज़ नॉट इन माई हैंड्स. मैं उसके बारे में सोच के, अभी भी लोग मुझसे कहते हैं कैडर कौन सा मिलेगा, ये कौन सा मिलेगा. मैंने बोला मेरे हाथ में है ही नहीं, तो मैं क्या सोचूं उसके बारे में. अब मतलब लोग एक्सेल शीट्स बनाते हैं, कुछ करते हैं. आई एम नॉट इन एनी थिंग कि मुझे उस चीज़ में जाना ही नहीं है. वो सोच के आई विल स्टॉप enjoying what I have today. अभी मैं आप लोगों के साथ हूँ. I can share, I can learn from you guys. I don't want to think about these things. Whenever these things happen, they will happen. So just enjoy what you have. Take it day by day. That is what. Just be थोड़ा सा उसको एक साल देखने के बजाय break it down into pieces. Take rest, take break in between. Enjoy what I like. Dancing. मुझे dancing तो मैं exercise. I used to take it form of dancing. So it was very rejuvenating for me also. It used to give me a little जो mental fatigue होता है, बार बार पढ़ के लिख के, वो भी कम हो जाता था. So I used to come back to my studies with a good energy. इंटरव्यू से पहले भी I used to, मतलब for that, मतलब उसका आई थिंक यू शुड टेक टाइम. इट्स योर प्रोसेस. जस्ट मेक इट योर ओन कि आपको जो करना पसंद है वो करो, अच्छे से पढ़ो. पढ़ाई के साथ साथ अगर आपको कहीं भी कुछ और भी लगता है कि दिस इज़ नॉट मेंट फॉर मी, मुझे कहीं और इंटरेस्ट है, यू कैन गो देयर ऑल्सो. इट्स योर लाइफ एंड यू हैव टू टेक डिसीजंस फॉर इट सेल्फ. ठीक है. अगर आपको कभी किसी स्टेज पे लगता है दिस इज एग्जाम आई डोंट वांट टू गिव, मुझे बनना ही नहीं है IAS IPS, मैं क्यों करूं, जस्ट बिकॉज समवन इज सेइंग मी, जस्ट बिकॉज मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं या फैमिली कर रही है, यू कैन गो टू एनी अदर प्लेस ऑल्सो. मुझे होता तो मैं भी कहीं और चली जाती. इट टेक्स करेज, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज एंड स्ट्रेंथ, बट देन इट्स योर लाइफ, सो यू हैव टू फाइंड इट विद इन योर सेल्फ. ठीक है. We have to finish the session. So thank you all of you. Thank you, Charu, once again. I think.